Hi everyone. Welcome to the Major Ragers podcast series with Bharat Sethi. I'm a serial entrepreneur, fitness enthusiast, but most importantly, a curious learner. I started my entrepreneurial journey at the age of 16 and incorporated my first venture, Poster Gully, at age 21. I was very fortunate to have my first exit at the age of 25-26. Uske baad, I started another venture which didn't work out that very well. In 2018, I incorporated the company that has the brand Rage Coffee, which is one of the fastest growing FMCG businesses in the country today. There's a lot of entrepreneurial energy and I feel I can contribute giving back to the ecosystem. How am I able to add value and have significant impact in their lives? I think वही मेरा mission है अभी with Major Ragers podcast. So कोई 40,000 feet वाला ज्ञान नहीं देना चाहता मैं, but सीधी बात with real life fundas. This podcast will be available on YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music. अगर आपको सुनना है तो ढूंढ लोगे आप basically. Come to Major Ragers. Every thumbnail on a YouTube video today is I made 50 crores in 10 days. So ये concept जो है FOMO का ये is destroying how people think about finance. आप फंस जाओगे ट्रैप में ना. सैलरी तो यार बढ़ नहीं रही, बच्चा भी है घर में, अब सब्जी भी महंगी हो गई है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा करूं क्या. बच्चा होने के बाद पर्सन पेरेंट्स फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते ही करते हैं. आज बनना है मिलियनेयर, आज अभी अगले महीने कैसे होएगा? जॉब तो कर ले, बिजनेस तो कर ले, चुपचाप हेड डाउन करके इन्वेस्ट करते रहो. इतना बेसिक है ना इन्वेस्टिंग करना, बहुत ही इजी, बहुत ही बोरिंग है. जो ज्यादा इक्विटीज की बात करते हैं, ये स्टॉक वो स्टॉक, वो एक्चुअली में इन्वेस्टिंग जानते ही नहीं कि इन्वेस्टिंग होती क्या है. हाउ हैज लाइफ चेंज्ड फाइनेंशियली फॉर यू? जहाँ मैं ईयरली कमा रही थी वो मुझे मंथली भी आने लग गया था. सिर्फ चोचलेबाजी और दिखावेबाजी है. Do you think it is the right thing कि FOMO में धंधे बनाने लग गए हम लोग? भाई चुप हो जा तू. What are the top 3 things that a person should be very careful about today when they think about savings? हमें पता है सेविंग करना है, बेनिफिट होता है. जो इशू आ रहा है, How would you explain financial planning to a 10-year-old? तो सबसे पहला नहीं, अब कुछ लोग बोलते हैं डेट अच्छा चीज है. EMI डेट में फंस ही जाते हैं फिर. Quick advice for anybody who wants to start investing today. You need to follow नेहा नागर. चुपचाप फॉलो कर लो. चुपचाप फॉलो कर लो. Neha, thank you so much for doing this. In my opinion, you are one of the finest creators India has today. And I personally love your content. And I was telling my team also बहुत time से यार कि नेहा के साथ बैठते हैं. And I genuinely feel कि the way you've grown over the years, I think it is you're no less than an entrepreneur. Like the way you think about content is very, very enterprising in nature. So that's the first reason why I wanted to sit with you. The second reason is, which is also more like fresh or very important today for me, is the scammy nature of financial advice that is being peddled to so many Indians and young Indians. कुछ भी चल रहा है for, don't mind, but I will be very upfront. And ये topic मेरे लिए इतना important है because the young people really don't know. उनको नहीं पता. 16-year-old, a 21-year-old, a 25-year-old don't know any better because finance कभी नहीं पढ़ाया नहीं उनको किसी ने. How did you start? And I think if I'm not wrong, correct me, I think you were the first one who started to give financial advice for free to so many Indians on social media. Yes, I was the first one on short video platforms. तो long videos में already काफ़ी सारे creators थे, but 2020 में I started in lockdown. तो first aim था because I was running a tax firm. तो वो मैंने 1 साल पहले ही चालू की थी. तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो मैं पहले CA का कोर्स कर रही थी, तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था फाइनल एग्जाम, बट मैंने 3-4 साल उस कोर्स को दिए, आर्टिकलशिप में दिए. तो आई हैड गुड नॉलेज ऑफ टैक्सेशन या ITR, GST, ये सब. GST तो बाद में आया, बट आई हैड गुड नॉलेज ऑफ ITR. तो उसके बाद आई हैड टू डू समथिंग, क्योंकि
आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, तो मैं सीए में फेल हो गई, पेरेंट्स कहने लगे शादी कर दो इसकी तो मैंने कहा चलो यार शादी से बचने के लिए एमबीए कर लेते हैं, कुछ जॉब वॉब पकड़ लेते हैं, सो दैट दे हैव समथिंग इन माइंड। अदरवाइज मुझे और एग्जाम देने थे, बट घर पे बैठ के दूंगी तो उनको बस शादी शादी दिखेगा, तो मैंने फिर और अटेम्प्ट नहीं दिए और मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद मेरी प्लेसमेंट लगी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, दैट इज आईएफएल, वन ऑफ द लीडिंग एंड लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। तो सीपी में ही मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पर आई वर्क फॉर 1.5 years, और वहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट भी हमारा अल्ट्रा HNI था। तो पीएमएस, EIF जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है वो काफ़ी ह्यूज होता है, 1 करोड़ होता है, 25 लाख से स्टार्ट होता था पहले, तो वो था। तो आई हैड टू मीट एक्चुअली वेरी रिच और वेल्दी पीपल, तो उनका मुझे माइंडसेट पता लगता था। मैं पूछती थी उनसे कि कैसे क्या हो रहा है, और अपना कुछ पिच करते थे हम लोग उनको। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार खुद का बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो मेजरली क्लाइंट्स थे वो सारे बिजनेस वाले थे। तो तब मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, और मेरे को नॉलेज थी टैक्सेशन, नॉलेज क्या, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा उसी में चालू करते हैं। तो मैंने तब अपना खुद का टैक्स फर्म चालू किया था, जिसमें मैं ITR और GST पर्टिकुलरली 2 ही सर्विस दे रही थी। और क्योंकि बाकी में तो आपको सीए की डिग्री चाहिए होती है, तो आउटसोर्स कर दिया करती थी अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता भी तो था। बट फिर 2020 में एक्चुअली लॉकडाउन लग गया, तो मेरा एकदम 1 ही साल होने वाला था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था, वो क्लाइंट बेस थोड़ा सा डिप आने लगा। लोग बोलने लगे कि मैडम अब क्या ITR, क्या GST, अब तो सब कुछ बंद हो गया है। एंड देन गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया था लॉकडाउन में, कि बिजनेसमैन कैसे थोड़े कम इंटरेस्ट पर, या फिर जो मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है, जो भी बेनिफिट दे रही थी गवर्नमेंट उस वक्त, तो लोगों ने क्लैरिटी नहीं थी। तो मेरे क्लाइंट से मुझे कॉल करके पूछते थे कैसे कैसे क्या करना है। तो तब मुझे लगा कि यार ठीक है, और मैं सोशल मीडिया तो सभी उस वक्त कंज्यूम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार सब कुछ डांस है, म्यूजिक है, कॉमेडी है, टिकटॉक उस टाइम पे था 2020 में, मार्च अप्रैल में। तो उस वक्त मुझे लगा कि यहाँ तो मेरा फील्ड का कुछ है ही नहीं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज ऑन टैक्सेशन फर्स्ट, कि जो मेरा क्लाइंट मेरे से क्वेरी पूछ रहा है मैं उसका वीडियो बना के डालती हूँ। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज डाला, ITR की डेट एक्सटेंड हो गई वो डाला, और मेरी 1-2 वीडियोज ही वायरल हो गई, एकदम स्टार्टिंग वाली। अच्छा। और मुझे 2 महीने में ही 3 लाख फॉलोअर्स मिल गए, तो दैट वाज द स्टार्ट एक्चुअली। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। फिर जो कमेंट में क्वेरीज आती गई मैं उनको आंसर करती गई नेक्स्ट वीडियो बनाकर। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि ITR क्या होता है, या किसको फाइल करनी चाहिए ITR, या GST के लिए वो एलिजिबल है कि भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो सबको पता होगा जो बिजनेस कर रहा है बट वो इतना सरप्राइजिंग था कि यार ऑडियंस को बहुत बेसिक चीजें भी जाननी होती है। तो दैट्स हाउ, मतलब इट केप्ट मी मोटिवेटेड, और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती गई, और 3 लाख हो गए 2 महीने में, फिर बैन हो गया, फिर जीरो से वापस इंस्टाग्राम पे चालू किया, और वहां भी 6 महीने में 6 लाख हो गए थे मेरे इजीली। So that's how I actually started, and I was the first one, very first one influencer जिसने फाइनेंस स्पेस में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाई थी। तो अल्टीमेट एम यही था, पहले अपना बिजनेस प्रमोट करना है, दूसरा जो क्वेरीज आती गई मैं उसको सॉल्व कर दी गई। एंड देन बहुत सारी वीडियोस बनाई। पहली वीडियो जो कपल फाइनेंस पे बनाई थी कि हाउ शुड अ कपल मैनेज देयर फाइनेंसेस, तो उसमें था कि आपको 4 अकाउंट रखने चाहिए, है ना? एक जॉइंट हो गया, एक आपका सेपरेट हो गया, एक इमरजेंसी फंड के लिए हो गया। तो और आपको क्लियर होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्लियर होने चाहिए, ऐसे करके एक वीडियो बनाया था मैंने। तो और यू शुड डिस्कस और टॉक अबाउट मनी। तो लोगों के लिए कंटेंट इतना नया था, इतना फ्रेश था कि पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग कि आपने ना कुंडली नहीं, आपने बैलेंस शीट मैच की है तो भाई मैंने कहा यार इतना नया कैसे हो सकता है, मतलब दिस इज, हर कोई बात करता होगा यार फैमिलीज में। और अभी जो इंडिया का डेमोग्राफिक है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 25 वाली है, स्पेशली 25 से 35 वाली हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और वो सारी ऐसी है कि अगर कोई शादी कर रहा है तो दोनों ही अर्निंग होंगे, भले ही वो मोस्टली मेजॉरिटी में यही होगा, दोनों अर्निंग होगा। तो क्लैशेस होने जरूरी है, या तो आप सब कुछ मर्ज कर रहे हो कि ठीक है दोनों ने छोड़ दिया किसी एक के ऊपर, अदरवाइज अगर दोनों ही थोड़ा थोड़ा चार्ज रखना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा वहां पर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं लेटर ऑन, है ना? और ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर डोमिनेटिंग है, या कोई पार्टनर को सब कुछ जाना है। हाँ, एक्चुअली में
मैरिज में देयर मेनी थिंग्स हैपनिंग दीस डेज, सबको पता है, बनती नहीं आपस में तो क्या करोगे, राइट। चैलेंजेस तो हैं उसमें ऑब्वियसली। लेकिन लोगों के लिए ऐसे था कि हाँ। ओ ये शादी में इतनी चीजें बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग और कमेंट्स, तो वहां पर बहुत सारी क्वेरीज भी आई थी कि एक्चुअली में मुझे पता नहीं है हमारी क्या इन्वेस्टमेंट्स है, या मेरी वाइफ भी कमाती है लेकिन घर में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो मैं कैसे उससे बात करूँ, कैसे उससे मांगूँ, या कैसे चीज़ों को एक साथ या अलाइन करूँ। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसमें हम कुछ बिल्ड करेंगे, कुछ लेके आएंगे। बट उस वक्त 1 डेढ़ साल पहले आइडिया नहीं था कि क्या करना है। तो ऐसे मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, मेरे पास इतनी क्वेरीज आती है ना, इतनी क्वेरीज आती है। कल भी मैंने एक Q&A किया था, उसमें भी इतनी सारे क्वेश्चंस थे कि हमारा इतना अमाउंट है, दोनों इतना अर्न कर रहे हैं, हमारा बच्चा अभी आने वाला है, प्रेग्नेंट है, और इतना हमारा लोन चल रहा है, तो क्या मैं अपनी इनकम को सारा सेव कर लूँ या दोनों कंबाइंड ही रखे। इतनी क्वेरीज आती है, तो इसलिए हमने सोचा कि लेट्स बिल्ड समथिंग जिसमें लोगों की सारे क्वेश्चंस ही आंसर हो जाए। तो एक तरीके से एक टूल बिल्ड किया है हमने, जिसमें वो अपना सारा डिटेल्स डालेंगे और उनको एक पूरा प्लान आपका मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड देन जो भी ये हमारा कोर्स है, उसमें हम अपने Q&A क्वेश्चन आंसर्स राउंड भी रखेंगे। कमेंट्स में लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, आई कैन आंसर इजीली। तो इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। रियल एस्टेट इज द कॉस्ट आर एट एन ऑल टाइम हाई इंडिया में, ग्लोबली ये बढ़ता रहेगा। डोंट सी दिस कमिंग डाउन। सप्लाई है नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही है, जगह है नहीं बनाने की। पीपल आर ऑल्सो चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल कि यार देर मूविंग आउट ऑफ द मेट्रोज, तो वापस जा रहे हैं अपनी सिटीज में। इनफैक्ट जो मेट्रो में रहे हैं पूरी लाइफ, वो दे हैव नाउ स्टार्टेड टू गो टू अदर सिटीज फॉर बेटर लाइफ, पोल्यूशन फ्री, लेस केओटिक। एंड मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो ये कर रहे हैं। मेरे आसपास इन द लास्ट पोस्ट पैंडेमिक आई वुड से at least 5-6 families very close to me have either moved to the hills, or they moved to Dubai, or they moved to Goa, or moved back to their cities, beautiful cities like Surat and Indore. तो वो निकलना चाहते हैं, but real estate costs are not coming down, they're only going to go up. एक यंग बहुत, मेरे को मैं देखता हूँ, ये घर ले लो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यहाँ से यू विल बी एबल टू पे ऑफ योर लोन्स। ना आज की डेट पे, विच इज द हार्ड रियलिटी, ना आज की डेट पे किसी की जॉब कंफर्म्ड है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ना किसी के धंधे कंफर्म्ड है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट ईएमआई आपकी कंफर्म्ड है, वो तो देनी ही पड़ेगी आपको, राइट? इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ओन अ होम टुडे फॉर अ यंग पर्सन। पुराना अगर मिला है तो वो अलग बात है। So, what is your opinion on this? Are there any hacks that one can use, or young people should just give up the idea of owning a home in India today? रियल एस्टेट के लिए अगर आपके पास कॉपस है, फंड्स है, तो डेफिनेटली यू शुड बाय इट। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो देता ही देता है, ऊपर से 1-2% एक्स्ट्रा देता है। 10-12% का रिटर्न आप आराम से कमा सकते हो, और 10-12% का रिटर्न कमाना किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इज अ वेरी गुड डील Over a long period of ओवर अ time. लॉन्गर पीरियड ऑफ एक टाइम। साल आपने 40% कमा लिया और अगले साल नेगेटिव। करेक्ट बहुतों के साथ हुआ है हाँ पोस्ट पैंडेमिक के। स्टॉक्स राइट। वेंट थ्रू द रूफ एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि अच्छा पेपर रिटर्न्स तो यार मेरी 40-50% है, और जैसे स्टॉक मार्केट वेंट डाउन द रिटर्न्स आर नो। तो जितने रियलाइज्ड 10-12% इज अमेजिंग, करेक्ट? जो जितने बड़े इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट है या राकेश झुनझुनवाला सर है, किसी का भी नाम ले लो, सबके वही रिटर्न होता है 12-15%। लॉन्गर रन में इतना कमा रहे हो तो बहुत ही अच्छे होते हैं, और हम उल्टा सोच रहे होते हैं कि हमें पैसा डबल करना है 1 साल में, 2 साल में। उस वजह से हम फंस जाते हैं गलत जगह। जो आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो, किसी भी तो वो इसी वजह से फंसते हैं, क्योंकि हमारा वो माइंड सेट होता है कि हमें जल्दी पैसे कमाने हैं, तो उस वजह से वहाँ फंस गए। अभी हम रियल एस्टेट की बात कर रहे थे या जेन जी की बात कर रहे थे, तो उनके लिए डिफिकल्ट होने वाला है डेफिनेटली। बट अगर आप जॉब भी कर रहे हो, कुछ फिक्स नहीं है, बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ फिक्स नहीं है, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए उसके लिए, कि जब आप जॉब कर रहे हो, जब आप बिजनेस चल रहा है आपका, तो एडवांस में ही आपके पास आने वाले 6 महीने का बफर होना चाहिए। मतलब 6 महीने के, मान लो आपके हर महीने के 10,000 के एक्सपेंसेस, जैसे आपने कहा ईएमआई तो फिक्स ही रहने वाली है, जॉब चली जाए 6 महीने के लिए चली जाए, 3 महीने के लिए चली जाए,
तो उसके लिए हमारे पास पहले से बफर होना चाहिए कि इतना अमाउंट मेरे पास रेडिली एक्सेसिबल हो बहुत ईजिली। तो उसको या तो आप बैंक अकाउंट में ही डाल सकते हो, ऑटो स्वीप फैसिलिटी होती है उसमें डाल सकते हो जिसमें आपको एफडी वाले रिटर्न्स मिलते हैं, तो दैट इज़ गुड इनफ। उसके अलावा शॉर्ट टर्म आरडी होती है उसमें डाल सकते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं या डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एग्जिट बहुत ईजी हो, एग्जिट लोड ना हो या फिर आराम से आप एग्जिट कर सको, तो वहाँ पर आप पार्क कर सकते हो। तो उससे एक पीस ऑफ माइंड आता है कि ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ पढ़ने में आ रही है, इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, उस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, ठीक है मेरे पास एटलीस्ट 6 महीने का बफर तो है ना, Right. कि मैं अपना बिजनेस चालू कर लूंगा या कोई जॉब ढूंढने के लिए मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा, मैं हड़बड़ी में कोई गलत जॉब या कम सैलरी वाली जॉब नहीं पकड़ लूंगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो फाइनेंस में हम एकदम स्टार्टिंग से सिखाते हैं, जैसे कि नंबर 1 इमरजेंसी फंड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप का हो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और मेट्रो सिटीज़ में 15 लाख तक का अगर आप ले रहे हो तो गुड इनफ है, अदरवाइज उससे कम ले रहे हो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़ें, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। अदर देन मेट्रो सिटीज़ है तो वहाँ पर आप 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट जो थर्ड चीज़ हम बोलते हैं वो बोलते हैं कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए अगर आपके डिपेंडेंट्स है तभी, यानी कि आपकी सैलरी पर कोई डिपेंड कर रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, तो आपके पास फिर लाइफ इंश्योरेंस। तो पहले ये 3 चीज सॉर्टेड होनी चाहिए, देन आप फिर ये रियल एस्टेट की तरफ आ गए, आप स्टॉक मार्केट की तरफ आ गए, आप म्यूचुअल फंड की तरफ आ गए, देन ये सब चीजें करते हुए आप ठीक लगेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अभी जंप कर रहे हैं, पहले 3 स्टेप कोई कर नहीं रहा है, सीधा जंप कर रहे हैं, या तो रियल एस्टेट खरीद लेंगे या फिर सीधा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि नेहा दो कॉन्सेप्ट बड़े पॉपुलर है ग्लोबली, इंडिया में तो अभी आई थिंक वो एक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पेनिट्रेशन अगेन वो दिखावेबाजी है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो सिर्फ चोचलेबाजी और दिखावेबाजी है। क्यों? क्योंकि योलो एंड फोमो। ये फोमो एक तो बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल पीपल सी ऑन सोशल मीडिया, एंड स्पेशली द यंग पीपल, आई कीप गोइंग बैक टू दैट बिकॉज द यंग पीपल आर अनअवेयर, उनको नहीं पता, उनको लगता है 100 करोड़ इन 100 days, 1000 करोड़ इन 50 days, I don't know. It's like every thumbnail on a YouTube video today is I made 50 crores in 10 days, or I made how I made 1000 crores, my personal wealth is an all time high, this that. There is genuinely a lot of FOMO in young people, hence they're jumping, they're saying कि यार मेरे को भी ये दिखावेबाजी की जिंदगी में एंटर करना पड़ेगा because otherwise I don't have any social status. My social currency today is what people see me on, how I look on Instagram and Facebook, or for that matter any other platform. So ये concept जो है FOMO का, ये I think it is destroying how people think about finance. The other thing which is very also closely related is YOLO. अब मान लो 50,000 की सैलरी है किसी की और they are like 21-year-old. ठीक है, 50,000 की सैलरी है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, मान लो रेंट है सिर्फ 10-15 हज़ार का, उस पे आप जाके आप बाय करते हो एक बहुत ही एक्सपेंसिव कोई गैजेट है, बहुत एक्सपेंसिव फोन फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड. हाउ डू यू परसीव दीज डिसीजंस ऑफ यंग पीपल? यार घरों में झाँकने की आदत तो हमारी स्टार्टिंग से है, और सोशल मीडिया में हो ही ये रहा है कि हम हर किसी के घर में झाँक सकते हैं, और लोग घरों में फिर वहाँ क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, करेक्ट. और उसकी वजह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड वीडियोस पहले नहीं बनाते थे, तो मैं कपल वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने लग गई, तो बहुत खुश होके लोग आपस में वीडियोस बना रहे। मैं उसको बोलती थी दीपक को कि यार तू तो बनाता नहीं है, ये देखो लड़का कितना ज़्यादा सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, ऐसी फ़नी वीडियोस भी बना रहा है, तुझे तो बस फाइनेंस की बनानी है। तो दीपक ने बोला कि यार ये सिर्फ एक साइड ही तो तेरे को दिखा रहे हैं, हम जो मेन काम है हम अपना वो तो कर रहे हैं ना। तो यही एक पर्सनल एग्जाम्पल लेके मैंने बताया, बट ये सब घरों में हो रहा है कि लोग देख रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव साइड, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हो रही है वो कोई नहीं दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल आप जब मैं कपल्स की बात कर रही हूँ तो क्रिएटर्स है कुछ, बहुत अच्छा दिखाते हैं, स्टार्टिंग में रिलेशनशिप गोल्स हो जाते हैं, ट्रू लव हो जाता है, 1 साल में उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो भाई पीछे की चीज़ में दिखाओ ना कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या इशू हुआ, बताओ तो सही हमें। सेम गोज़ फॉर जो फैशन वीडियोस हो गई या ब्यूटी वीडियोस हो गई।
एक वीडियो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो एक ब्राइड है, उस ब्राइड का किसी ने मेकअप किया था, तो वो मेकअप आर्टिस्ट ने उस ब्राइड की वीडियो डाली थी, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा टचअप कर रखा है। एकदम उसको बहुत ही सुंदर दिखा, ऑलरेडी दैट दैट गर्ल वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट वो मेकअप आर्टिस्ट ने इतना ज़्यादा एडिटेड करके डाल रखा है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है परी या कुछ मतलब सुपरस्टिशियस लग रहा है। समझ गया। तो उस ब्राइड ने वीडियो डाला फिर कि भाई ये मेरी रियल फोटो थी और ये इसने एडिट करके डाला है। तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो थे ही थे, कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे कि कैसे लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, वो भी फेक करके। तो ये एक एग्जांपल है जिसकी वजह से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर मैं अपना फाइनेंसेस का भी आपको बता रही हूँ कि मैंने पिछले साल 1 करोड़ कमाया, या कोई भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर या कोई भी आपको बता रहा है कि स्टॉक मार्केट से मैं इतना कमा रहा हूँ या इतनी कमा रही हूँ, तो प्लीज़ आप देखो कि वो सिर्फ आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आप कमाया है, मे बी उसने लॉस भी तो कर दिया होगा 1 महीने बाद, या उससे पहले कोई लॉस भी तो खाया होगा। तो पॉजिटिव्स पे कम ध्यान देके नेगेटिव्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स पॉजिटिव पे ध्यान देंगे तो आपको मोटिवेशन तो आएगी ही आएगी, बट ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं स्पेशली फाइनेंस इंडस्ट्री में, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट दिखाकर या फेक बता होता है, 90% फेक है। 90% फेक होते हैं और And गवर्नमेंट बार SEBI is बार cracking down on them. करेक्ट Cracking down. I was करेक्ट। very happy जब लास्ट 6-7 महीने पहले वो शुरू हुए थे। मैं पिछले 2 साल से काफी पोस्ट कर रहा था इसके बारे में यार कि अच्छा। they are not helping anyone. हम्म They are just scamming people. Most of them would come, वो सब screenshots are all edited, and they would show something. Especially जो options trading में गेम बजाई है लोगों की। स्टॉक मार्केट तो देखो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एनीबडी हु सेज दैट दे आर गुरुज ऑफ स्टॉक मार्केट, nobody, and I said nobody Nobody. can predict where a stock will go in 10 days, tomorrow. But the problem is people want to know. जैसे if I make a video on stock market कि भाई stock market में गेम करते हैं लोग उसको for sure. Some people game it at the top level, but nobody can predict. A retail investor today cannot predict, or a normal person who doesn't have access to information, they can never predict. But वो peddling of information जरूर होती है, and SEBI is cracking down on all of them. करेक्ट। अभी कल ही हुआ Daily है, fines जा रहे हैं. हाँ, कल ही एक यूट्यूबर को 12 करोड़ का फाइन भेजा है बिकॉज वो एडवाइस प्रोवाइड कर रहे थे और उनके पास लाइसेंस तो था नहीं, और वही ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट। तो बाप ऑफ चार्ट, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको पिछले 1 साल में क्रैकडाउन किया है सेबी ने। बट यहाँ पर अब थोड़ा सा पार्ट ऑडियंस का भी ज्यादा है ना, Correct. कि वो देखना ही वो वीडियोस चाहती है जहाँ पर उनको ये सारे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं या फिर थंबनेल वैसे क्रिएट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक थंबनेल क्रिएट करती हूँ आईटीसी एनालिसिस, तो वहाँ पर व्यूज़ नहीं आएंगे। आईटीसी में आपके 2 साल में पैसे डबल हो गए या 2 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, उस पर व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये हमारी साइकोलॉजी होती है एक्चुअली, हम वहीं क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैंने अपने 5 मिनट दिए तो मुझे कुछ बेनिफिट हो सकता है। बट अगेन अब ऑडियंस को ये सोचना है, अब हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको सोचना है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो सबसे पहले सिर्फ एजुकेशन के लिए फॉलो करो, एडवाइस के लिए तो बिल्कुल मत करो, चाहे वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड है और वो आपको सही एडवाइस प्रोवाइड करेगा तो उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं। जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजेस भी होती है लाइक म्यूचुअल फंड, उनको भी ज़्यादातर रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। तो आप एजुकेशन के लिए किसी को फॉलो कर लो ऑनलाइन, उसके बाद आप फॉलो तो कर लिया, उसकी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन तुरंत एक्ट मत करो। उनके कमेंट सेक्शन में भी जाके देखो कि क्या लोग एक्चुअली में उनके बारे में लिख रहे हैं। तीसरा आप ये भी चेक करोगे कि वो कितना एक्टिव है ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक वीडियो पे मेरे 20 मिलियन आ गए तो मैं बहुत खुश हो गई, नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है किसी को समझने में, तो मैंने 1-2 को रिप्लाई कर दिया, डीएम आया तो रिप्लाई कर दिया, कुछ और नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो डाल दी मैंने, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं ऑडियंस को जाकर सॉरी भी बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें आप नोट करो और उन्हीं को फॉलो करो जो आपको लॉन्ग टर्म में जिनको आपने लॉन्ग टर्म में देखा है। जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट होता है मार्केट में, उसे मार्केट में अगर वो आ गया है तो उसे अपना वर्थ प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए होता है, राइट? जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसके लिए टाइम चाहिए, तभी आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। एकदम से हम सब ने बोला कि बिटकॉइन 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 बिटकॉइन, तो आप नहीं खरीद सकते ना, आपको टाइम देना होगा उसको, रिसर्च में भी और एज अ प्रोडक्ट भी उसको खुद को प्रूव करने के लिए। तो प्लीज इन्फ्लुएंसर्स को भी आप टाइम दो और उसकी सिर्फ वीडियोस देखो, एंड देन जब आपको लगे कि हाँ ट्रस्ट वर्दी है, देन आप सोच सकते हो कि हाँ अच्छा ये सही एडवाइस देता है, ये गलत एडवाइस देता है, और अनफॉलो मारने में बिल्कुल मत डरो। सुपर इंटरेस्टिंग। या ये नेहा जो
वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई थिंक people who are creating wealth will never are interested to talk about how to create wealth. मतलब क्या फर्क पड़ता है, जिनको पैसा बनाना है वो बना रहे हैं. और हिस्ट्री विल गाइड अस ऑलवेज कि पैसा बनता लॉन्ग टर्म में ही है. यू कीप डूइंग समथिंग ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हेंस वेल्थ क्रिएशन हैपेंस. No wonder most people, billionaires in the world, are above the age of 55, 50 because it takes time. But आज चाहिए, आज 21 साल वाले को, 25 साल वाले को आज बनना है मिलियनर, आज, अभी, अगले महीने. कैसे होएगा? नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता. बट ये वेल्थ क्रिएशन मेरे हिसाब से इज ओनली अ लॉन्ग टर्म प्ले. आइदर यू आर इन अ ग्रेट वर्क प्लेस or in a great role, you have great knowledge, you have great education, you can do it. Or you're a hustler, you're a business person, तुमने धंधा बनाया, over a long period of time, you can create wealth through your stock, share value. Or you are in some sort of a creative field where you can make long-term impact and create value. Value creation is equal to wealth creation in my mind. And I've seen, and I've met, I think 15, 20 billionaires so far in my life, and Indian billionaires. They're all, they have made their money like this, all of them. ये आज का माइंडसेट समझ नहीं आता मेरे को. तो क्या ओपिनियन है आपका? यार हमारी जनरेशन जो थी मिलेनियल्स जिन्हें बोलते हैं, हम एम्बिशियस थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे. बट अब की जो जेनजी जनरेशन है ना, उनको चैलेंजेस बहुत कम है उनके. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पैशन कोई फॉलो करना होता था, वी हैड टू स्ट्रगल अलॉट घर पे ना, कि अच्छा तुझे नहीं पढ़ाई करनी है. तो वो मना जो कर रहे हैं ना पेरेंट्स, उसकी वजह से ज़्यादा मोटिवेशन आता था कि कोई मना कर रहा है अब तो मैं ज़रूर करूँगा. अब क्या हो रहा है कि अब हमें सब कुछ ईजिली मिल रहा है, तो वो मोटिवेशन ही नहीं है लोगों के पास, पर्पस ही नहीं है. जो हमारी करंट यंग जनरेशन है कि वो किस लिए मेहनत करे. माय गॉड, दैट्स अ पर्पस नहीं है. वेस्टर्नाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी. राइट. हां, पेरेंट्स ने सब यूरोप कुछ का हाल अभी यही है ना. पिछले 20 साल से यूरोप इज स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम. करेक्ट. तो सब कुछ हमें मिल गया है, नाउ वी आर स्ट्रगलिंग कि करे क्या भाई. जॉब मार्केट में बहुत ही प्रॉब्लम है ऑलरेडी. अनएम्प्लॉयमेंट जितना है उससे ज्यादा होने वाला है फ्यूचर में. राइट. और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम, राइट, मैं खुद एम्प्लॉयर हूँ, तो मुझे पता है कि राइट कैंडिडेट ढूंढना कितना डिफिकल्ट है भाई, कितना डिफिकल्ट है. मतलब एक अगर मुझे राइटर चाहिए होता है तो उसमें मुझे 3-4 महीने इवन ज़्यादा लग सकते हैं स्किल्ड राइटर ढूंढने में. तो इसीलिए अब उनके पास जॉब नहीं है, पर्पस भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली है. एंग्जाइटी इश्यूज या डिप्रेशन इश्यूज बढ़ने वाले. बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जिसमें बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन रहने वाली है जो करंट है अभी. आई टोटली एग्री. मतलब आई हेट टू से दिस बट आई टोटली एग्री. मतलब आई फील आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज और मूवमेंट जहाँ पे कहीं ना कहीं वी आर एबल टू गाइड देम प्रॉपरली. बट यू आर सो राइट. मतलब आई कैन नॉट डिनाई विद एनीथिंग यू आर या सेइंग. 4-5 घंटे का हमारा स्क्रीन टाइम होता है दिन का. हम बाहर नहीं जा रहे हैं. Insane. हमारे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कम्युनिकेशन वाली, या पीपल स्किल जिसे कहते हैं, बार्गेनिंग स्किल जिसे कहते हैं, है ही नहीं बच्चों में. तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं. इसीलिए उनको ज़रूरत है कि वो स्टार्टिंग से गाइड किया जाए एक तो उनको. तो एक तरीके से अब जब उनको गाइड करने की ज़रूरत है तो मिसगाइड करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पर. अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो मान लो 10 लोगों को वो देख रहे हैं, 10 में से 3 या 4 सही होंगे, बाकी सारे मिसगाइड कर रहे होंगे. Right. या उनको ऐसे जैसे अभी आपने बोला थंबनेल दिखाकर अट्रैक्ट करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल दिया, या बैंक निफ्टी में वो ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन उनका प्रॉफिट हो गया, फिर वो महीने भर लगे हुए हैं उस प्रॉफिट को दोबारा रिपीट रेप्लिकेट करने के लिए. वो रिपीट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. तो वेल्थ जनरेशन डेफिनेटली जैसे आपने कहा है वो लॉन्ग टर्म गेम है, बट उसके लिए पहले सॉर्टेड होना है कि भाई अपने आज तो कुछ कमा ले, जॉब तो कर ले, बिजनेस तो कर ले, कुछ ऐसा सस्टेनेबल कर ले जो लॉन्ग टर्म में आपके पास एक तो सोर्स ऑफ इनकम हो. जो ये गिग इकोनॉमी है कि फ्रीलांसर इकोनॉमी में आप बिलीव कर रहे हो वो ठीक है, बट
सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, और उनको हैंड होल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जनरेशन को स्पेशली, कि उनको हम बता सकें कि वेल्थ जनरेट करना है तो ऐसे ऐसे स्टेप्स ले सकते हो आप। पहले फाइनेंशियल प्लान बनाओ, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो एंड इतना इन्वेस्ट करो, इतना खर्च करो। खर्च करने के ऑप्शंस कितने ज़्यादा है यार, मतलब स्नीकर्स हो गया, हर चीज़ का क्रेज़ आ जाता है हर एकदम चीज से। का है। और अगर आप उस फोमो क्रेज़ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो उनको फ़ील होगा कि यार मेरी लाइफ तो झंड है, झंड है, सही मैं है। तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, या मैं तो रिलेवेंट ही नहीं हूँ। तो इस वजह से उनके आसपास इतनी सारी चीज़ें जो उन्हें वेल्थ से दूर लेके जा रही है। तो अब ज़रूरत है कि वो ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करे, या ऐसे लोगों के पास जाए, फॉलो करें बातें उनको, करे, नॉलेज लें हाँ, उनसे। जो उन्हें वेल्थ के और पास लेके जाए। और ये जो दिखावा है इन सब पे लोग कम फोकस करें। Yeah, coming to the second part of this, so I think personally I've covered a lot. Mhm. What I wanted to cover with you on the how people perceive money today. Yeah. Financial advice is one of it. I think हमारी बात से ये तो बहुत clear है कि most of the information out there is superficial and is destroying how people think about finance and how they can create wealth. मतलब जो पाथ ले रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑन द राइट पाथ बिकॉज ऑफ अगेन द सिस्टमैटिक प्रॉब्लम, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है. नाउ लेट अस ट्राई एंड फाइंड सम सॉल्यूशंस. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टू गेट देम टू. हमने अब प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, Yeah. आज के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? Mhm. आई हैव अ कपल ऑफ पॉइंट्स, उसको धीरे धीरे कवर करेंगे, बट व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स or 4 things according to you that a person should be very careful about today when they think about savings? Mhm. क्या उनको 3-4 चीजें जरूर करनी चाहिए टू डेवलप अ सेविंग्स माइंडसेट? एंड सेविंग्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स. Mhm. पैसा है तो लगाओगे कहीं पे, इन्वेस्ट करोगे, है ही नहीं, बचा ही नहीं पा रहे तो कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो क्या लगता है 3-4 चीजें कुछ? यार सेविंग पे तो हम बहुत टाइम से फोकस कर रहे हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी सब सिखाया हमें। तो सेविंग में आई थिंक जो इशू आ रहा है, सेविंग क्यों नहीं कर पा रहे, हमें पता है सेविंग करना है, बेनिफिट होता है, क्यों नहीं कर पा रहे, वो सोशल मीडिया हो गया एक रीज़न। दूसरा हो गया सोसाइटी में हमें अच्छे दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, जो स्पेंडिंग है वो जेंजी हो या मिलेनियल्स हो, हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं दिखावे वाली चीज़ों पर, राइट। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि क्या नीड है और क्या वांट है, उसमें हम डिफरेंशिएट करें कि ये मेरी नीड की चीज़ें हैं जिनके बिना शायद काम नहीं हो सकता है, और ये मेरी वांट की चीज़ें हैं जिनके बिना काम चल सकता है। तो आपकी जितनी भी इनकम है, लेट्स सपोज आप 21 साल के हो, आपने अर्निंग चालू किया है, तो वहाँ पर डिसिप्लिन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपका खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाने की, बजटिंग करने की, स्मार्ट गोल सेट करने की, कि भाई मैंने आज 21 की साल में इतना कमाना चालू किया है और मुझे 20 साल बाद ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो मैं वो कैसे रोड मैप क्रिएट करूँगा? तो वो रोड मैप क्रिएट करें करूँगा। एक बारी साथ मिलके. या किसी, लेट्स से वी हैव अ 21-year-old who's making 40,000 rupees a month. या कुछ उनके लिए रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट 10 years के लिए? या डेफिनेटली। तो अभी आप 20 इयर्स ओल्ड हो, तो मान लेते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। अब आप कहीं और एजुकेशन के लिए या एमबीए के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हो, तो आपकी ये एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। अब ये जो 40,000 आपका आ रहा है, तो लेट्स सपोज जैसे दिल्ली है, या लेट्स से लाइफ इन अ टीयर मेट्रो सिटी. टीयर 2 सिटीज़ हो गई, नोएडा हो गई, ग्रेटर नोएडा हो गई, तो वहाँ पर 20 to 25,000 तो आपका एक्सपेंसेस में जाना ही है, जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब कि जैसे रेंट हो गया, ग्रॉसरी बिल्स हो गया आपका, और कुछ हो सकता है कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो या पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, तो 25 तो आपका आराम से वहाँ चला गया, ठीक है। अब मेट्रो सिटीज़ में आप रह रहे हो, ट्रांसपोर्ट का भी हो सकता है, तो मान लेते हैं हार्डली आपका 20 to 25 चला गया एक्सपेंसेस में, जो कि आपके नीड्स हो गए हैं। तो अब आपकी जो इनकम बच रही है एक्चुअली में, उसके लिए वो आपकी सेविंग्स हो गई, जो हम अभी बात कर रहे थे। तो हर महीने अगर आपकी इतनी सेविंग्स हो रही है, तो उस सेविंग्स का हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि अब आगे जो मैं चीज़ें अचीव करना चाह रहा हूँ, या मेरी लाइफ में मान लो आगे जो 15,000 महीने की सेविंग हो राइट रही राइट है, राइट मतलब राइट वो मेरे पास एज अ सेविंग्स नहीं बोलूंगा, अगेन वांट्स भी हैं, जैसे नीड और वांट्स में हाँ, मैंने करेक्ट करेक्ट डिवाइड कर करेक्ट दिया, तो करेक्ट मैंने मान लो हाँ हाँ, वो 25,000 हम रुपए निकाल सकते नीड हैं। में जैसे निकाल जैसे दिए. हमारा 50-30-20 का रूल होता है, वो क्या जनरलाइज रूल है है, एग्जैक्टली? लेकिन
50% हम अपने एक्सपेंसेस में डालेंगे, जितनी भी मेरी इनकम है नीड्स में, जो जरूरी है, जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती रहना हूँ। है, छत तो हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और 30% मैं इन्वेस्ट कर दूंगी फ्यूचर के लिए। जैसे मेरे गोल्स होते हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, पेरेंट्स का रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, ये सारे मेरे गोल्स होते हैं मोटा मोटी। और भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, बट 6-7 ही गोल्स होते हैं जो सबके होते हैं। तो वो जो 30% निकाला है वो मेरी सेविंग है। अब जो बचा 20% है वो है वॉन्ट्स, कि ठीक है, यू लिव ओनली वंस। उसके लिए सिर्फ उतना ही अमाउंट रख लिया मैंने एक्स्ट्रा निकाल के, और उस पे मुझे खर्च तो करना है 40,000 उसमें रुपए भी से। कमा रहे हैं तो राइट, 8,000 रुपए वॉन्ट्स पे खर्च सकते हैं। खर्च कर दिस सकते वुड हैं। इंक्लूड लेट्स से ईटिंग आउट हम्म और लेजर्स। हम्म। लेजरली मान लो को ट्रैवल करना है छोटा मोटा। या और क्या क्या आ सकता है कपड़े वॉन्ट्स हो में? सकते हैं कपड़े हो आपके, सकते हैं। है ना, आपका मेकअप का सामान हो गया, या आपने कोई गैजेट ले लिया जो जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉच, फोन है, ठीक है, जरूरत होता है सबका, लेकिन फोन आपका वो 15,000 रुपए वाला भी काम कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको अपग्रेड करा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वॉन्ट्स में आ जाता है। लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि फोन तो मेरा भाई नीड में ही होगा ना, सबको जरूरत होती है, लेकिन भाई 15,000 वाला, 20,000 वाला भी तो आप काम चला सकते हो, लेकिन आपको जो जितने फीचर्स चाहिए उतने तक का जितने बजट में आ रहा है वो आपका नीड होगा। लेकिन अगर आप ब्रांड की तरफ जा रहे हो, सैमसंग, आईफोन, और उसके लिए अपग्रेड कर रहे हो, वो वॉन्ट्स में आ जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा क्लियर होने की जरूरत है आपको। क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए एक यंग बंदे को नया? यार क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैशबैक मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, फ्लाइट्स मिल जाती है, बट अगेन आपको बहुत ही वाइजली यूज करना है। एक तो पहला रूल यही होता है कि हमें अपना फुल पेमेंट कर देना है डेट से पहले ही। दूसरा, जो हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है, आपके पास 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है, उसका सिर्फ 30% ही यूज करना है। 30% से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। तो वो हैबिट बनानी चाहिए, कैशबैक के या रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट कर लो, उसका बेनिफिट ले लो। बट अगेन ठीक है, आपने 30% यूज कर लिया, लेकिन कोशिश करना कि नीड्स पे ही खर्च कर रहे हो आप, या वॉन्ट्स पे अगर कर रहे हो तो ठीक है, कैशबैक मिल रहा है इसलिए आपने खर्च कर दिया, लेकिन ये जो रूल है कि आपको फुल ही पेमेंट करना है, वो करते रहना है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आपने वॉन्ट्स में ये बाइफरकेट कर लिया। अब जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे अभी तो आपकी 40,000 है, अभी आपके 25 में घर के खर्चे हो रहे हैं, 5 साल बाद आप 50-30-20 नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपकी जो जैसे इसमें आपकी मान लो 50% जा रही है, 20,000 जा रहे हैं एक्सपेंसेस, लेकिन 5 साल बाद आपके जो खर्चे हैं वो ऐसा ना हो कि अगर इनकम डबल होगी तो खर्चे भी डबल कर दिए। खर्चे डबल मत करना प्लीज। तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना, सो दैट जो आपका इन्वेस्टिंग का 30% अभी निकाल रहे हो, उस वक्त आप इन्वेस्टिंग का 30 की जगह 40% निकाल सको, सो दैट आपके गोल्स अचीव हो सके। तो गोल्स के लिए भी हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि जैसे अगर मुझे 2 साल बाद गाड़ी लेनी है, सबसे पहले अगर कोई बच्चा कमा रहा होता है वो कोशिश करता है कि पहले अपना व्हीकल ले ले। सबसे पहली परचेज फोन होती है, दूसरी परचेज जो बड़ी परचेज होती है वो होती है हमारी व्हीकल, या तो गाड़ी लेता है कोई या बाइक लेता है। तो उसके लिए भी प्लान कर सकते हो कि भाई आज जो गाड़ी आ रही है ना उसका 5 लाख प्राइस है, और गाड़ी का जो इन्फ्लेशन है ना, देखो लोगों ऐसा भी माइंडसेट है, रिटेल इन्फ्लेशन को ही वो सारी इन्फ्लेशन मानते हैं, जबकि सारी इन्फ्लेशन अलग होती है। तो हमारी एजुकेशन अलग होगी, ट्रैवल पे भी इंश्योरेंस, ट्रैवल का भी जो इन्फ्लेशन रेट होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है रिटेल से। आई थिंक बहुत ज्यादा है वो इस वक्त। हाँ 12-14% पे है करेक्ट ट्रैवल करेक्ट करेक्ट। तो इन्फ्लेशन। लोगों को लगता है 6% ही तो है, वो 6% के अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं गोल की। नहीं नहीं, कोई करता नहीं, इन्फ्लेशन को तो अकाउंट में नहीं लेते लोग। अच्छा, 90% लोग ये भी होता है, हाँ। कर ही नहीं रहे तो ना। जो 10% कर रहे होते हैं वो फिर 6% के हिसाब से कर रहे होते हैं हाँ, सारे, हाँ। है ना। तो बट होता क्या है कि 14 है, 12 है, कोई चीज 7 है, कोई चीज 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट्स। और बहुत सारे गूगल शीट है, बहुत सारे कैलकुलेटर वहाँ डाल सकते हैं कि भाई आज 5 लाख की जरूरत है, 2 साल बाद 7% के हिसाब से मुझे मे बी 6 लाख की जरूरत होगी, तो उसके लिए उस वक्त मुझे 6 लाख की 20% डाउन पेमेंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उतना अमाउंट मेरे पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इस वक्त मुझे हर महीने कितना पैसा सेट असाइड करने की जरूरत है, ताकि मैं वो डाउन पेमेंट कर सकूं। अगर इस तरीके से आप प्लान बना के चल रहे हो हर एक गोल के लिए, तो आपका जो माइंड है ना बहुत क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी ठीक है खर्चे हो गए, 10,000 ही बचे यार इस महीने 20,000 ही बचे, इस महीने 5,000 ही बचे, तो उसकी वजह से ना आपको ना बहुत स्ट्रेस फील होता है कि यार मेरी जॉब तो इनफ ही नहीं है, मेरी लाइफ तो ठीक ही नहीं है, तो वो मेंटल स्ट्रेस होता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, अगर आपकी जो इनकैपेबिलिटी है, या फाइनेंशियली आप जो साउंड नहीं हो, लिटरेट सबसे नहीं बड़ा हो, रीजन है वो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ के लिए इसकी है। वजह से सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ होता सबसे है। बड़ा हाँ, रीजन है वो। और इतना बेसिक चीज है ना, इतना मतलब हमें लगता है कि हम ये रेशियो चेक कर ले, हम ये कर ले, हम ये वाला म्यूचुअल फंड चेक कर ले,
इतना बेसिक है ना इन्वेस्टिंग करना, या इतना बेसिक है ना फाइनेंशियल प्लान बनाना, बहुत ही ईजी, बहुत ही बोरिंग है। तो जितना बोरिंग है उतना बेटर है आपके लिए कि चुपचाप अपना इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लो, 2 साल बाद आपको इतना चाहिए, 3 साल बाद इतना, 5 साल बाद, और उसके लिए अब से कितना अमाउंट सेट असाइड करना है उसका भी कैलकुलेटर होता है यार, हर चीज का। तो अब वो सब करके देखो, चलोगे ना अपनी ये लाइफ में, तो कैलकुलेटर्स कहाँ अवेलेबल है? गूगल पे इजीली सारे प्लेटफॉर्म हम्म, प्रोवाइड करते हैं, जितने भी हम्म, आपके ब्रोकर्स है सब प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड कहीं से खरीद रहे हो वो सब प्रोवाइड करते हैं। हमारा खुद का भी कैलकुलेटर जो हमने खुद से बनाया अपने प्लेटफॉर्म के लिए, वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो यूज़ कर सकते हो, तब आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो मैंने गोल सेट किए हैं, या ये जो मेरे गोल्स हैं, उनके लिए ये जॉब पूरा नहीं पड़ेगा, तो फिर आप सेकंड सोर्स के लिए हम्म। भी मेहनत करोगे। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट आई थिंक कभी इंडिया में कभी पढ़ाया नहीं गया, हम्म, मतलब हमें नहीं पढ़ाया गया था। इनफैक्ट आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। बिजनेस तो इज लाइक आज यहाँ तो कल वहाँ, पहले ऐसे ही होता था और आज भी होता ही है। स्टेबिलिटी नहीं होती, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अ बजवर्ड टुडे, फाइनेंशियल प्लानिंग, हम्म, एंड इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स हम्म, राइटली अ बजवर्ड बिकॉज हम्म, लाइव्स हैव चेंज्ड एक तरह से। जैसे आपने बोला भी कि घरों में झांकने की आदत पहले भी थी, आज तो सबके घर खुले हैं। हम्म, तो बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेसियर्स, मुझे लगता है आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, "अरे यार ये क्या बोल रहे हैं लोग, हाँ, हमें ये सब नहीं समझ आता। राइट, राइट, हम तो हम हर महीने को वी टेक वन डे एट अ टाइम, वन मंथ एट अ टाइम, देखी जाएगी।" हाउ वुड यू एक्सप्लेन फाइनेंशियल प्लानिंग टू अ 10-year-old? हम्म। ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है, या सबसे पहला जो चीज़ हम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, तो ग्रॉसरी शॉपिंग। सिंपल सी बात है, आप उनको फंड्स दे दो कि भाई इतनी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें खरीदनी है, जाके लेके आओ, और लेके आनी है आपको। तो उसको आप सिर्फ गाइड मत करो, आप उसको कंट्रोल भी दो थोड़ा सा, लेट देम मेक मिस्टेक। तो सबसे पहला जो गलती हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की थी, या हम करेंगे, वो है कि हम उनको गलती ही नहीं करने देते हैं। हम बच्चों को गलती नहीं करने देते कि तू अगर बैंक अकाउंट का अगर थोड़ा बहुत डिटेल दे भी दिया, तो वो चीज़ें इधर-उधर हो जाएगी, नहीं। पैसे दे दिए हैं, लेट देम वेस्ट इट, थोड़ा-सा करने दो, चेक करने दो कैसे क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहला तो ग्रॉसरी शॉपिंग उनको सिखा सकते हैं। दूसरा, हम उनको बता सकते हैं एक्चुअली में कि हाउ डज़ वी मेक मनी? पैसा बनता कैसे है, और कैसे हम उस घर को चला रहे हैं। जनरली होता क्या था कि जब हम घरों में पैसों की बात हो रही होती थी, तो मम्मी-पापा बोलते थे, "यार तू उस कमरे में चले जाओ, या उधर चले जाओ।" वो नहीं होना चाहिए, हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए बच्चों के सामने ही। क्योंकि पता है क्या भरत, एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मैं भी एक ठीक-ठाक सोसाइटी में रहती हूँ, तो वहाँ पर बच्चे क्या बात कर रहे होते हैं। मेरे मम्मी के पास आईफ़ोन 15 प्रो है, Oh मेरे my पापा ने God. मर्सिडीज़ ली है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ओह माय गॉड! कि हम इस वक़्त इस ट्रिप पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल के नाम ले रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर भले ही वो 10 ईयर्स है, बहुत समझ है, और बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक्चुअली, और आप उनको सही से गाइड नहीं करोगे, तो वो इस तरीके से एक गलत एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे बाकी बच्चों में। ये शो ऑफ का हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम्पल हो गया। तो एक बच्चा है, वो हमेशा भाई साहब ब्रांड की ही बातें करता है, और ही इज़ जस्ट 9 इयर्स ओल्ड, एंड आई एम लाइक, भाई चुप हो जा तू। मतलब उतनी ब्रांड्स तो मेरे पास नहीं, इतने वो ब्रांड्स के नाम ले देता है। My तो वो God. घर से ही चालू घर होगा में कि सीख, जो घर में देख रहे हैं वही करेक्ट, करेक्ट। तो बोलेंगे उनको बाहर भी। बिठाओ भाई, सही से बात कराओ कि ठीक है, इफ यू आर अर्निंग वेल, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट सर्टेन थिंग्स। आप इस तरीके से बजटिंग करें, या कितना इंपॉर्टेंस है मनी, ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए, और डेफिनेटली ही सिखानी चाहिए घर पे। अदरवाइज बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो सकता है बच्चों के बीच में किसी और बच्चे का। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। देन हमारे गवर्नमेंट भी अब कर ही रही है यार, कि काफ़ी सुनने में आ रहा है कि हम फाइनेंस के चैप्टर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी के चैप्टर्स इंक्लूड करने वाले हैं। मे बी 1-2 साल में ये हो जाए, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी ये तो। और बेसिक जबरदस्त। टर्मिनोलॉजी भी सिखा सकते हैं कि बैंक है, एफडी है, इंटरेस्ट है, या इन्फ्लेशन सिखा सकते हैं। इन्फ्लेशन का अमाउंट आराम से सिखा सकते हैं कि तेरी जो एक किताब थी वो पिछले साल 100 रुपए की आई है, हम्म, इस साल तेरे बहन कितने की आ रही है, तो हम्म, इन्फ्लेशन की वजह से आ रही है। हम्म, तो इस तरीके से वी कैन टीच देम हम्म। फाइनेंसेस। दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक तो जो मेरे को आई थिंक हम सब कवर कर रहे हैं, बट लेट अस आल्सो कवर द चैलेंजेस। हुँ, व्हाट आर द टॉप 3-4 थिंग्स? आई थिंक हमने काफी डिस्कस किया है अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो भी डिस्कस किया। इन्फ्लेशन, लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू हुँ, गो अप, lack of stability, leading to a lot of FOMO, YOLO, both of those things.
leading to mental health issues with young people. All of these are, let's say, negatives which you are saying कि यार हाँ ये हमें address करते हैं हम इसको. That is why you are doing what you are doing. So एक जो let's say the challenges plaguing more than this, ये तो बहुत, I think, things that are at the macro level. A lot of things will have to come together to solve these issues. I don't think that we can solve them today, tomorrow. ये एक लंबा time लगेगा इसको solve करने के लिए. But to a 25-year-old today who's wanting to buy a house, a car, simple things to live their life comfortably, what would your suggestion be to them? Savings तब कर सकते हो ज्यादा. अब मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ. कोई भी रॉकेट शिप से ना ग्रो नहीं करता. most people would have a very subdued growth in their lives, and let's just accept it, that's the reality. What can you recommend to a 25-year-old today, personally, not just about finances? कि यार ये आप लाइफ ना थोड़ी सी ऐसे जियो. आप अपनी ये मान के चलो कि आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो एक टाइम के बाद आके स्टैग्नेट कर जाए. बहुत लोगों को लग पता है यार मैं तो बढ़ती रहेगी. ऐसा होता नहीं है. एज यू गो फ्रॉम जूनियर टू मिडिल मैनेजमेंट एंड देन टू मिडिल टू सीनियर मैनेजमेंट, देयर इज अ स्टैग्नेशन many people face in their careers, and also skills irrelevant हो गई हैं लोगों की. बहुत लोग हैं जिनकी skills बिल्कुल irrelevant हो जाएंगी in the next couple of years because of AI, because of the demand that the demand of skills the professional world needs. तो philosophically क्या advice होगा आपका उन लोगों के लिए? आई थिंक जो एडवांटेज कुछ लोगों के पास होता है जिसकी वजह से वो और अच्छा करते हैं करियर में, वो होता है पहला नेटवर्किंग स्किल्स होती है उनके पास, दूसरा बार्गेनिंग स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है. तो अभी क्या है ना, हम 4-5 घंटे फ़ोन में लगे हुए हैं, या जॉब करके आ रहे हैं, फ़ोन चलाया और सो गए. तो हमारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गया है. एआई है या कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ रही है इंडिया में या कहीं पे भी, जिसकी वजह से हमारी जॉब तो डिफिकल्ट होने वाली है, लेकिन अगर आप कहीं स्टैंड आउट कर सकते हैं तो वो इन सब स्किल्स की वजह से. तो अगर आप 25 ईयर ओल्ड हो तो प्लीज़ थोड़ा सा स्किल्स पर इन्वेस्ट करना चालू करो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी अदर असेट क्लास. सबसे Superb. पहले खुद के अंदर इन्वेस्ट करना चालू करो कि आपके अंदर ये स्किल्स आ सके कि अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो तो अपने काम का कुछ निकाल के लाओ, कुछ सीख के आओ. बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जहाँ लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है यार सैटरडे संडे मिला है यार, अब आराम से घर पे चिल करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे. बट उसकी वजह से आज तो आपने चिल कर लिया, लेकिन 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन आपकी जो ये प्रॉब्लम्स होंगी कि आपका जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस वक्त आपको बहुत मेंटली स्ट्रेस फील होगा. तब रियलाइज होगा कि भाई अगर 10 साल पहले मैंने थोड़ा नेटवर्किंग ज़्यादा कर ली होती, मैं इवेंट्स में ऐसों में जा चुका होता जहाँ पर मुझे मेरे मतलब के लोग मिल रहे हैं, तो मेरी आज ये दशा नहीं होती. आज मेरे पास शायद सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होती या बेटर जॉब होती. तो दिस इज द नंबर वन एडवाइस आई वांट टू So गिव skills is टू number एनीवन. one. The second is networking, and यस, creating your networking. Rather, network is your net worth. करेक्ट, This is also important वेरी thing. So सिंपल Neha, सी that बात है. brings me to a very important question. That because of Shark Tank, I think Shark Tank is a pivotal moment for Indian entrepreneurship scene. उससे पहले भी I've been an entrepreneur for so many years. I started out at 21. उससे पहले भी धंधे बनाए, और last 12 years I've been doing it, and आई थिंक कभी भी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी. नॉलेज तो बाद में आया, मतलब जरूरत ऑब्वियसली पड़ी, बट इट वाज मोस्टली कि यार ऑन द जॉब सीख रहे हो, देन यू एक्सपैंड योर नेटवर्क, एंड देन यू एक्सपैंड योर नेटवर्क, देन यू लर्न फ्रॉम द राइट पीपल, ग्रो, एंड देयर इज अ पाथ दैट यू कैन कार्व आउट. नॉइज नहीं थी बिल्कुल भी. आई वुड से कि नॉइज थी भी तो सुनी नहीं. बट टुडे इट्स बिकम सॉर्ट ऑफ अगेन सोशल मीडिया की तरफ से हो सकता है, बट it's become a sort of a charm to be an entrepreneur or be a founder. यार मैं खुद कुछ खुद का करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ.
what I know is that entrepreneurship is the most difficult thing anyone can do. मतलब अगर जिंदगी में कोई मतलब डिफिकल्ट काम करना है तो आप खुद का धंधा बनाने की कोशिश करो. बहुत मुश्किल है. और ग्रो करना तो it's a different ball game altogether. And to be successful over a long period of time, let's say 5-10 years, uh, I would say only 1 in 500 are able to successfully build large businesses. बट क्योंकि आज शार्क टैंक पे रोज एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं नए नए, कोई 1 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 50 करोड़ की मतलब वैल्यूज मांग रहे हैं और धंधे भी बना रहे हैं लोग, which I'm very happy to see. But because of all this, a lot of people think it's easy. अरे यार ये तो मैं भी कर लूंगा, अरे इतना ही होता है, इतना ही लगता है, अरे 2 साल में यार 10 करोड़ कमा लिया इसने तो हम भी कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू बिलीव इन दिस कि हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर व्हाटएवर, लाइक व्हाट इज योर थीसिस ऑन दिस? एंड सेकेंडली, डू यू थिंक इट इज द राइट थिंग टू थिंक? ये सही सोच है क्या कि फोमो में धंधे बनाने लग गए हम लोग? यार इंस्पिरेशन मिल रहा है हमें, तो नंबर वन इंस्पिरेशन तो ज़रूरी है कि कहीं से तो मिले हमें. तो हो सकता है कि अगर कोई नेहा है वो टियर 2 में बैठी है तो उसका ऐसा सर्कल नहीं है ना कि जहाँ पर वो देख सके कि हाँ बिजनेस बिल्ड कैसे होते हैं, या किसी से बात कर सके कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो. तो उसने देखा कि शार्क टैंक में कुछ करना है. अब नेहा कर रही थी अपना टैक्स का कुछ, तो उसने उसको और मोटिवेशन लेके और बड़ा करने का कुछ ट्राई किया. तो उसके लिए तो वो वर्क कर गया डेफिनेटली. अब कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्ड करने का सोच रहे हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर बनना है, सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर बनना है, इसकी वजह से करना है उसको. तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम ढूंढने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है कि जिसमें मैं अच्छा हूँ मैं वो करूँ, या जो मेरे मन का है मेरे पैशन का है मैं वो करूँ. नहीं, वो रॉन्ग रीजन की वजह से कर रहा है. इंस्पिरेशन सुपर. लेना इज गुड, बट रीजन ऑफ इंस्पिरेशन शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट समथिंग, राइट? अब जैसे हमारी जनरेशन है या हमसे जो पहली है उन्होंने की मजबूरी में, ठीक है. फिर हमारी जनरेशन आई, हमने किया पैशन में कि हमें अच्छा लग रहा है इसलिए कर. अब ये जो जनरेशन आ रही है ये कर रही है दिखावे में. तो दैट इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि फिनोमिनल. जब एंटरप्रेन्योरशिप में आप आगे जाओगे 1 साल 2 साल 3 साल, तो इतने चैलेंजेस आते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है. फिर आप कैसे डील करोगे वैसे स्ट्रेस से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में टीम हायर करना है, तो टीम कैसे हायर करोगे आप? तो स्किल्स को कैसे अपग्रेड करोगे? तो रीजन आप सही ढूंढो, देन आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहोगे थ्रू आउट योर जर्नी. आई बिलीव रीजन ऑफ इंस्पिरेशन शुड बी राइट. तो आपने जो बोला ना शार्क टैंक का, अच्छा है यार, ट्रेंड चलना चाहिए, इंस्पिरेशन लोगों को मिलनी चाहिए. टियर 2 में पहुंच रहे हैं, टियर 1 में पहुंच रहे हैं, एक्सेसिबल हो रही है चीज़ें, लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा टैग क्या होता है, या ये क्या होता है, कौन सा टर्म है, या कौन सा ब्रांड है, किसने कैसे बिल्ड किया. तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा ईजी लगने लगता है. और जब तक ईजी नहीं लगेगा लोग स्टार्ट भी नहीं करेंगे. तो स्टार्ट करना भी ज़रूरी है, राइट. बट उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो अपने आप को भी जानना बहुत ज़रूरी है. जबरदस्त. आई एग्री. I have the Yes. same thesis. So, Neha, towards the last bit of this conversation, एक बड़ा ही छोटा सा रैपिड फायर है. Most of the things that I wanted to cover with you have been covered. We can keep talking. I love chatting with you about how you think about finance, and no wonder you are so successful, because I think first principle thinking है, ज़्यादा complicated कुछ नहीं है, but you're so I think honest to your craft that it reflects in your work. तो बहुत सही है. Anyhow, let's jump to the rapid fire. पहला सवाल, what is that one financial advice that no financial advisor wants to tell you? इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, सिंपल. क्योंकि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है या इन्फ्लुएंसर्स, हम भी जनरली उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, या फिर जहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है. बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ पे खर्च कर रहे हो. बुक्स है, कोर्सेज है, या जिम की मेम्बरशिप है, तो सबसे पहले यहाँ खर्च करना चाहिए, एंड देन आप अपना कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो. What is the one thing that destroys personal finance for somebody? ग्लोरीफाइंग कंपाउंडिंग, मेरे ख्याल से कि अगर हम ग्लोरीफाई करते रहेंगे ना कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में, ये
तो बाकी चीज़ें जो आपको जैसे मैंने बताया इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, वहाँ पर आप शायद कम इन्वेस्ट करेंगे या फिर फोमो में इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे कि यार लेट हो जाऊंगा या कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इतना भी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ठीक ठाक अपना पर्सनल फाइनेंस का प्लान बना लो, गोल, और उसके आराम से चुपचाप हेड डाउन करके इन्वेस्ट करते रहो। Percentage of for any investor, percentage of equities? लेस देन 30 to 40% आई बिलीव इज गुड टू गो। भले आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो, शॉर्ट टर्म में तो इक्विटी का परसेंटेज बहुत ही कम होना चाहिए, अंडर 10%। मीडियम टर्म में आप 20% कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के जो गोल्स है आपके, जैसे 10 साल बाद घर लेना है, 10 साल बाद आपका पेरेंट्स का रिटायरमेंट है, बच्चों की एजुकेशन है, तो उनके लिए यू कैन कीप इट टू 30 to 40%। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इक्विटी में ही घुसे रहना है कि ये रेशो सर्च करूँ। जितना ईजी होगा, जितना आपके लिए काम बोरिंग और इजी होगा, उतना आप ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ज़्यादा इक्विटीज़ की बात करते हैं, ये स्टॉक वो स्टॉक, वो एक्चुअली में इन्वेस्टिंग जानते ही नहीं कि इन्वेस्टिंग होती क्या है, और एक्चुअली में वो सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हैं और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे को भी पसंद नहीं है स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बात करना। But mutual funds or direct exposure to stocks, which is better? वो डिपेंड करता है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं गोल बेस्ड प्लानिंग ही करवाती हूँ। मतलब गोल जो है मेरा, उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं ज़्यादा रिस्क ले सकती हूँ तो मैं इक्विटी बोलूँगी, डायरेक्ट इक्विटी में आप पार्क करो। अगर मेरा कम रिस्क का है, जैसे 5 years है, तो मैं बोलूँगी म्यूचुअल फंड आप चूज़ करो। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर गोल। अगर आपके पास कुछ फंड्स पड़े हुए हैं कि ठीक है सारे गोल्स के लिए मैंने कुछ ना कुछ असाइन कर दिया, और फिर कुछ फंड्स पड़े हुए, तो देन डेफिनेटली आपको थोड़ा रिस्की साइड जा सकते हो, इक्विटी साइड। Hmm. Do you believe in passive income? Yes and no? Of course, Yeah. everyone should So believe. passive income for somebody who's making 50,000 rupees again a month, opportunities of passive income हैं कोई top 3 जो generally thumb rule आप apply कर सकते हो किसी पे? पैसिव इनकम इन्वेस्टिंग से बनानी है तो डेफिनेटली इंडेक्स म्यूचुअल फंड या ETF आप चूज कर सकते हो, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने का कुछ, एंड लॉन्ग टर्म में आपको 12% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। तो दैट इज नंबर 1 इन्वेस्टिंग। नंबर 2 फ्रीलैंसिंग कर सकते हो आप, बट अगेन वो पैसिव नहीं होगा। तो आप रियल एस्टेट में, अगर आपके पास कॉपस है तो वहाँ आप पार्क कर सकते हो। रियल एस्टेट में बड़ा कॉपस नहीं है तो रियल एस्टेट की यूनिट्स होते हैं, जैसे इन्वेट्स बोलते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। Fractional ownership. फ्रैक्शनल ओनरशिप बोलते हैं, रीट्स बोलते हैं उन्हें, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, तो अगेन वो इन्वेस्टमेंट का ही है। अगर पैसिव इनकम चाहिए तो इन्वेस्टमेंट्स के अलावा और कहाँ से आएगी। Last one, last rapid fire. What is your quick advice for anybody who wants to start investing today? What is You- your one golden advice to them? यू नीड टू फॉलो नेहा नागर। चुपचाप फॉलो कर लो। चुपचाप फॉलो कर लो। बहुत बढ़िया ने, आई हैड अ फन टाइम, बहुत मजा आया। और आई थिंक अगर ये कोई देख ले एपिसोड, उसको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे उसके। Yes. सबसे बड़ी चीज होगी। Correct. बाकी ज्ञान वान सब लेते रहना, बट फंडामेंटल्स क्लियर कर लो सबसे पहले अपने। इन्वेस्टिंग को लेके, पर्सनल फाइनेंस को लेके हमने आज बहुत कुछ कवर किया। वी आल्सो कवर्ड टॉपिक्स अराउंड विच टू मी विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि यार आप सब ये चीजें करोगे, सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस सॉर्ट आउट करो और अपना लाइफ इंश्योरेंस सॉर्ट आउट करो इफ यू हैव डिपेंडेंट्स। So I think these things are the most important, और उसके बाद आप wealth creation Then और also you need to invest on yourself. yourself and और then उसके on wealth बाद- creation. हाँ, करेक्ट। तो लोग जंप कर जाते हैं इन्वेस्टिंग में, जबकि ये सारे स्टेप्स फुलफिल करने के बाद ही यू नीड टू जंप टू इन्वेस्टिंग। Awesome. Follow Neha for sure, and also keep following Major Agers. We have a lot of interesting content coming for you. So see you guys. चलो, Thank you, Neha. so much. Thank Perfect. you. Yeah. आपका हर एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है टू कीप क्रिएटिंग दिस कंटेंट। प्लीज सपोर्ट करो, शेयर करो, जितने लोगों तक ये पहुंचाओगे उतना हम सबको मोटिवेशन मिलेगा टू कीप डूइंग दिस। थैंक यू। कम टू मेजर एजेस।